तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ योर स्टडी आवर्स। तो जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो एंड मोस्टली मेरे वीडियोस में आपको पोमोडोरो सेशंस देखने को मिलता है 10 आवर्स 12 आवर्स के। तो स्टार्टिंग में मैं भी इतना नहीं पढ़ पाती थी, बट मैंने कुछ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किए थे अपने पूरे लाइफस्टाइल में। तो मैं आज वही आप सबसे शेयर करूँगी सो दैट आप भी अपने स्टडी को प्रोडक्टिव बना पाओ एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप दिन के एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही पाओ। फर्स्ट थिंग इज़ टू ट्रेन योर माइंड। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पोमोडोरो स्टडी सेशंस, जो मैंने मयूर हज़ारिका सर के वीडियोज़ को देख के मेरे को पता चला था एक्चुअली में, और मैंने इसको खुद से इम्प्लीमेंट किया था। और अभी तो ऐसा हो गया कि विदाउट पोमोडोरो टेक्निक में पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो पोमोडोरो टेक्निक बस यही होता है कि आपको बैठना होता है एक टाइमर को लेके। जैसे कि अभी प्रीलिम्स के आने का वक्त हो ही गया है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करो और अच्छे से पढ़ो। रिसेंटली आई गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम समवेयर दैट द नोटिफिकेशन फॉर APSC 2025 विल बी लाइव बाय नेक्स्ट मंथ एंड वी विल बी हैविंग आवर प्रीलिम्स फॉर APSC 2025 by the month of March. So I believe this is the perfect time for you guys to start your preparation specifically for APSC prelims, because you guys will only have 3 months for the exam. But I know many of you must be having a lot of questions on how to start preparing for the same. So don't worry guys, I've got you all covered, because I believe right resources and right guidance is all that you need to clear this exam, and Sandpaper Academy is providing all of these in a very affordable cost. So guys, they are starting their prelims crash course for only 5,100, and I believe this is the cheapest price any coaching center is offering. So guys, you don't have to worry, because they are providing complete GS and CSET paper syllabus completion in a very smart way. Also, they are providing free prelims test series and current affairs classes for complete 1 year. Also, you'll have complete PYQ analysis and 1:1 personalized mentorship, and I believe this is one of the bestest course that you can purchase. And current affairs की चिंता को दूर भगाने के लिए you can take their current affairs course, which is only and only for 99 rupees guys, where you'll have complete 1 year current affairs notes, daily class notes, complete guidance by Ashmita Ba, and doubt clearing opportunity, which is available both for online as well as offline mode. We also have this full test series course for only 4,999 rupees, where you'll have 30 full length tests for all the GS subjects and 5 full length CSET papers along with free solved PDF. Also, you'll have doubt clearing opportunity, which is available in both online as well as in offline mode. So talking about Sandpaper Academy for Civil Services, it is one of the most prominent institutions in Guwahati, which is established by Ashmita Rekha Bora ma'am, who cleared APSC in her very first attempt. And also you can see the other faculty members who are extremely good at their services. So recently I had the opportunity to visit their center, and I gave my first mock in Sandpaper Academy, and I am extremely grateful to Ashmita Rekha ma'am for her personalized guidance, because it was my first mock and I was really nervous. मैं सब भूल गई थी mock में जाके, but the valuable feedback that I received from all the board members really helped me in my real interview, क्योंकि first mock में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और उन्होंने अच्छे से मुझे explain कर दिया कि what are the things that I need to work upon, and I implemented all of those feedbacks and मेरा real interview बहुत अच्छा गया. So I believe Sandpaper Academy is one of the bestest institutes which is providing 1:1 mentorship at such an affordable price. So you all can take the help of Ashmita ma'am, and you can also check out these courses. All the links are given in the description, so don't forget to check this. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें टारगेट्स कैसे सेट करने होते हैं सो दैट आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट ना हो। आपको बस पढ़ना है बोल के पढ़ने नहीं बैठना है। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे कब क्या पढ़ना है। सो फॉर दैट रीज़न सेटिंग टारगेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम आज बात करेंगे कि टारगेट्स यूजुअली हम कैसे सेट करते हैं, जो कि मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे थे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज़, एंड वहाँ से मुझे पता चला था कि टारगेट्स कैसे सेट करने होते हैं एंड अपने स्टडी सेशंस को कैसे प्रोडक्टिव बनाना होता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्टली वी हैव टू सेग्रीगेट द सिलेबस। सो लाइक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी टॉपर्स यही बोलते हैं कि आपको सिलेबस का एक कॉपी आपको अपने टेबल पे रखना है, एंड आपको सारे कीवर्ड्स देखने होते हैं, क्योंकि सिलेबस हमें सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया होता है। वी हैव GS1 GS2 GS3 ऐसे करके बस टॉपिक्स दिया हुआ होता है। सो यू हैव टू सेग्रीगेट, जो कि आप अपने टीचर्स का भी मदद ले सकते हो, या फिर कोचिंग सेंटर में तो अलग से
ही देते हैं वो लोग। सो जो कीवर्ड्स होते हैं, एक एक कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेग्रीगेट द सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वहाँ पे जीएस पेपर वाइज दिया हुआ होता है। सेकंड इज़ टू सेट मंथली टारगेट्स, एंड मंथली टारगेट्स में हमें ऐसे सोचना होता है कि जैसे मुझे फर्स्ट 2 मंथ्स में मुझे पॉलिटी ख़त्म करना है या मुझे इकोनॉमिक ख़त्म करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि बेसिकली आप जो भी सब्जेक्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप पहले सिलेबस देख लो, देन यू डिसाइड, एंड आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहेगा। क्योंकि ऐसा है ना, यूपीएससी या एपीएससी के पढ़ाई में सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड अप होते हैं। सो फॉर मी आई थिंक जियोग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ रिलेटेड होता है, जो कि हमेशा आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। एंड येस, डू नॉट रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन द इनिशियल फेज़। ऐसे बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप एनसीईआरटीज़ भी कर लो, आप रेफरेंस बुक भी स्टार्ट कर लो, आप सब कुछ पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है, आपको सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करना है, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, यू कैन गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, एंड देन यू हैव टू सेट योर वीकली टारगेट्स, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टारगेट सेट करना है। मंथली टारगेट्स में हम सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि मुझे इस मंथ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और वीकली टारगेट्स में हम टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट हो गया, लेट्स से हिस्ट्री में मुझे एंशिएंट ख़त्म करना है इन 2 वीक्स या 3 वीक्स, आपको ऐसे करके टारगेट सेट करने होते हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर डेली टारगेट्स, जहाँ पे हम डेली हमें क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, हमें वही टारगेट सेट करना होता है। अगर आप टारगेट सेट करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ, आज का टारगेट मुझे आज कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उसके लिए आपको यूज़ करना है पोमोडोरो सेशंस, ताकि आप एक ही जगह पे, अगर आप 50 मिनट्स का टाइमर ले रहे हो तो आप बैठो। एंड यू हैव टू प्लान योर डे 1 डे प्रायर, एक दिन पहले ही आपको पूरा प्लान कर लेना है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है, तभी आपको क्लैरिटी रहेगा और आप अपना दिन का मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकोगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम मोटे बुक्स को कैसे हम कवर करें। क्योंकि मुझे भी ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा दिक्कत होता था कि बल्कि बुक्स देख के मुझे पढ़ने का मन ही नहीं चाहता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता था, मुझे टेंशन होने लगता था कि मैं कैसे पढ़ूँगी, मैं कैसे इतना ज़्यादा ख़त्म करूँगी। क्योंकि ये बुक देखने में बहुत छोटी है बट बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, तो ऐसे बल्कि बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता। चाहे वो बुक का साइज़ अगर बड़ा होता है और वो पतला होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि वो छोटी बुक है, बट ऐसा नहीं है। साइज़ के ऊपर भी वेरी करता है वो चीज़। बट इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिया है वो स्पेक्ट्रम वाला बुक, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि बुक बहुत ही ज़्यादा बल्कि है। ऑलमोस्ट लाइक 1000 पेजेस की ये वाली एडिशन है। तो ऐसे बुक्स को अगर आपको पढ़ने में डर लग रहा है कि कैसे मुझे पढ़ना है, इतने ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, आपको ऐसा डर है, तो मैं आपको एक हैक बताऊँगी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, समटाइम्स अभी भी करती हूँ। सो क्या होता है ना, पहले आपको कंटेंट्स अच्छे से चेकआउट कर लेना है एंड यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या कौन से डे पे पढ़ना है। क्योंकि ऐसे बुक्स में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, तो इस वजह से आपको पहले PYQs देख लेने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो यू हैव टू सेपरेट दोज थिंग्स एंड आफ्टर दैट आपको प्लान करना है कि मुझे कौन सा किस डे पे पढ़ना है। सो यू कैन गो फॉर मंथली, वीकली, डेली टारगेट्स अपने हिसाब से आपको सेट करना है, जो आपका पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। एंड जो हैक मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ रिवॉर्डिंग योर सेल्फ वाइल स्टडिंग। सो ऐसा होता है कि जैसे कि मुझे पढ़ना होता था, मैं यूजुअली स्पेक्ट्रम का 50 पेजेस लेके चलती थी, मुझे एक दिन में ख़त्म करना है। और ये रीडिंग नहीं मारना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको कंटेंट समझना है, आपको लिंक करना है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरी, आपको स्टोरी लाइन अच्छे से याद करना है। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे मैंने 30-40 पेजेस ले लिए, मैंने पोमोडोरो लगा दिया सेशंस, जैसे कि मेरे को 2 सेशंस में मुझे 40-50 पेजेस अच्छे से ख़त्म करना है। और ये इस चीज़ का मोटिवेशन मैं ले रही थी, क्योंकि मैं पढ़ते वक्त मुझे स्नैक्स खाना पसंद है, तो मैं ऐसे पेजेस के बीच में ऐसे मैं चॉकलेट्स या फिर कुछ रख देती थी। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं अपने माइंड को ट्रिक करती थी कि अगर मैं इतना पढ़ूँगी तो मुझे इस चीज़ को खाने का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो दिस वे मैं बहुत देर तक बैठ सकती थी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जब आपको पढ़ने का मन नहीं होता तो आप कितना भी पोमोडोरो लगा लो, आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो पढ़ने का, प्रोडक्टिव स्टडी करने का एक ही मंत्र है, दैट इज़ टू ट्रेन योर माइंड। सो आई होप ये सारे हैक्स आप यूज़ करोगे, आपके लिए यूज़फुल होगी। हाँ, आज के वीडियो में हमने प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ एनालिसिस एंड आंसर राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो हाँ, आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड मिलता है आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड कुछ भी क्वेरीज हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।